نامنظور 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 مرسوم 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 سندھ کے جزائر پہ قبضہ، ہماری دھرتی پہ قبضہ، ہماری زمین پہ قبضہ، ہمارے حقوق پہ قبضہ، مرسوم 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 مرسوم. دوستو اج کو پان گٹھیا آج today we have gathered here outside Pakistan's embassy in Washington DC behalf of Sindhi Association North America. اور ہم آج یہاں پہ احتجاج کرنے آئے ہیں، احتجاج کرن آیا ہوں تو وفاقی حکومت جو آرڈیننس جاری کیا ہے which seeks to occupy our islands, the coastal belt of Sindh Balochistan، اس کی ہم مذمت کرنے آئے ہیں، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں پاکستان پروگریسو الائنس کی، ڈاکٹر غزالہ قاضی، خاور رضوی صاحب اور ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، ان سب دوستوں کا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. اور سب سے پہلے آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے سائیں خالد ہاشمانی صاحب کو، آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سائیں خالد ہاشمانی صاحب کی گزارش ہے. ہاں دوستو وڈی مہربانی تव्हां کٹھا تھیا آहियो. اڄ इन करे हिते अची गॾु थिया आहियूं त जीअं असीं पंहिंजो प्रोटेस्ट इन ॻाल्हि ते कयूं त पाकिस्तान गवर्नमेंट जेको ऑर्डिनेंस पास कयो आहे ॿिनि आइलैंड्स खे ते कब्ज़े करण जो, उन जे ख़िलाफ़ असीं हिते मुज़ाहिरो करे पिया आहियूं. पाकिस्तान एम्बेसी हिते वॉशिंगटन DC जे साम्हूं उन जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो था कयूं ऐं उन्हनि खे इहो ॿुधाइण था चाहियूं त असां कॾहिं पंहिंजनि हक़नि ते हमेशह विढ़ंदा रहंदासीं, कॾहिं बि उन्हनि खां असां पासो न कंदासीं. सो इहा ॻाल्हि यादि रखनि त हू सम्झंदा त कंहिं बेईमानीअ सां या कंहिं ट्रिक सां या कंहिं ट्रिकीअ सां असांजे राइट्स ते एक्सप्लॉइट कंदा, असीं उहो क़बूल न कंदासीं. ऐं इहा जंग हमेशह रहंदी जेसि ताईं हू असांखे इक्वल राइट्स न मिलंदा. महिरबानी. تھینک یو آشمانی صاحب. اب میں گزارش کروں گا پاکستان پروگریسو الائنس کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر غزالہ قاضی صاحبہ کو آئیں، اور ان کا اور بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آئیں اور آپ اپنی بات کریں. غزالہ قاضی ہوں، میرے ساتھ عاصم یوسفزئی بھی ہیں، وہ سیکریٹری آف ہماری آرگنائزیشن کے سیکریٹری ہیں. پاکستان پروگریسو الائنس سنا کے ساتھ اور سندھ کے سارے غریب لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، جن کے حقوق کے اوپر، جن کی زمین کے اوپر اس وقت وفاقی گورنمنٹ کا قبضہ ہو رہا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم لوگ ہر فورم میں اس کو لے کے جائیں گے. ہم لوگ پروگریسو پاکستان الائنس جو ہے وہ ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم لوگ اس بات کو سنا کو ہم اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ کے، بلوچستان کے اور پنجاب کی زمینوں پر اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے. اوکاڑا کے فارمرز کی اور اوکاڑا کے لینڈ کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. ابھی تک وہ لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. پھر ایک مبارک نامی گاؤں ہے سندھ کا اور بلوچستان کے بارڈر کے اوپر، اس کے اوپر قبضہ کر کے انہوں نے مچھیروں کو اس گاؤں سے نکال دیا ہے اور نکال کے انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اور اسی یہ ڈیولپمنٹ جتنی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ زمین ان کو بلانگ نہیں کرتی. یہ زمین ان کی نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے، یہ سندھ کی زمین ہے اور یہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب اور ان سب کی زمین ہے. اور ہم لوگ اس بات کے بہت سخت خلاف، اس آرڈیننس جو انہوں نے بنایا ہے اس وقت جو آئلینڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہم اس کے خلاف ہیں. اور یہ پاکستان کے جو آئین ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ یہ لینڈ جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے سندھ کو. بہت بہت شکریہ. اب ہم گزارش کریں گے جناب سہیل انصاری صاحب کو، جو سینٹ لوئس سے آئے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. سائیں سہیل انصاری صاحب کی گزارش ہے تو اپنے خیال اظہار کریں. مہربانی دوستوں اور میڈیا کے دوستوں جو شامل ہوئے ہیں اور سارے دوست جو ہمارے اس پروٹیسٹ میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں.
شعر سے آغاز کروں گا. بڑا ون ورکار جا جتے نانگ سوجن نیرا اوتے عبداللطیف جے رس رہبر راہ میں. یہ پکار ان غریب مچھیروں کی ہے جن کا رشتہ سندھ کے دریاؤں اور لہروں سے ہے, اس سمندر کی لہروں سے ہے. یہ پکار اس ہر جاندار چیز کی پکار ہے جو ان جزیروں پہ اپنا جیون رکھتی ہیں اور صدیوں سے اپنے جیون کو بچائے ہوئے ہیں. دوستو, یہ پکار ہر جمہوریت کے حامی کی ہے. یہ پکار پاکستان کے چاروں صوبوں کی ہے. یہ پکار سندھ کی ہے, یہ پکار پنجاب کی ہے, یہ بلوچستان کی بھی پکار ہے, اور یہ پختونخوا فرنٹیئر کی بھی پکار ہے کہ ہم اس نام نہاد آرڈیننس, اس انلیگل آرڈیننس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. اس قسم کی ڈیولپمنٹ کو ہم نہیں. جزائر پہ قبضہ, جزائر پہ قبضہ, ہمارے وسائل پہ قبضہ, سندھ پہ قبضہ, دھرتی پہ قبضہ, زمین پہ قبضہ. دوستو, ladies and gentlemen, I want to tell you that there is nothing legal about this ordinance. There is absolutely nothing. This ordinance has no place. It is a betrayal of the Constitution of Pakistan. It's a blatant betrayal of the rule of law. So our voices need to be heard. It's a matter of time that this ordinance will be defeated. Islamabad has forgotten that we all come from the same strain of blood that defeated General Zia's 11 years of martial law. We defeated the illegal barriers that were put on 18th Amendment. We defeated Ayub Khan's one unit. We have also defeated Musharraf's illegal onslaught on top of the legal institutions of Pakistan. So rest assured, this ordinance will be defeated. It will be defeated with the people of the power of the people, with the people's power of Pakistan, and we will not accept this illegal. مرسو 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 مرسو. In the end, I would like to say, we today are united. Today we are one voice. Today we have one demand. Islamabad, take back this ordinance. Take back this ordinance. Thank you very much. Thank you. Now I request our senior leader, Sana's former president, Sai Iqbal Tareen Sahab, please come and share your views on this issue. मुझा दोस्तों, साथियों, असांजा हमवतनो, असांजा भेनरो भावरो, अॼोको ॾींहुं हिक लिहाज़ खां तमामु अफ़सोसनाक ॾींहुं आहे जो अगस्त 31 ते पाकिस्तान गवर्नमेंट हिकिड़े ऑर्डिनेंस जे तहत इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमोरल एक्ट जेको परपिट्रेट कयो आहे सिंध जे ख़िलाफ़, बलूचिस्तान जे ख़िलाफ़, असीं उनजी मज़म्मत कयूं था. सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त ऑर्डिनेंस, governing by ordinance, is actually a shameful violation of the democratic process. जहां डेमोक्रेसी खत्म होती है, जहां बातचीत खत्म होती है, जहां अक्ल नाकाम हो जाता है, वहां डिक्टेटरशिप स्टार्ट होती है. और ऑर्डिनेंस इज डिक्टेटोरियल डिमांड, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. जब आपके पास पार्लियामेंट है, जब आपके पास सेनेट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, तो ये ऑर्डिनेंस कहां से आया? Shame, shame, shame. पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 172, 97 and 142 के तहत फेडरल गवर्नमेंट अभी वो कंकरेंट लिस्ट नहीं रही. अब वो अयूब का राज, यहया का राज, मुशर्रफ का राज नहीं रहा. अब हमारे पास कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं है. अब फेडरल लिस्ट है, लेजिस्लेटिव लिस्ट है, जिसमें कहीं भी मुझे दिखा दे, हमारे मीडिया के, यहाँ के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया के लोगों को
कहीं दिखा दीजिए कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकती है, दिखाया हमें। आर्टिकल 239 सेक्शन 4 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, टेम्पररी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन आप जब आईन को ऑल्टर करेंगे, अब जब आप प्रोविंशियल टेरिटरी को ऑल्टर करेंगे तो आपको प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी में आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये ऑर्डिनेंस itself is unconstitutional, immoral, it's mute. It doesn't mean a thing. इसमें आप इस ऑर्डिनेंस को लेके आप जो है कागज में पकौड़े जहां बांधे जाते हैं वो लेके उसमें पकौड़े बांधे और वो सेल करें। Shame, shame. कोई आईनी हैसियत नहीं है, इसकी वायोलेशन आईनी है, लेकिन इसका वजूद आईनी नहीं है। इसकी मज़ाहमत आईनी है, लेकिन इसका वजूद आईनी नहीं है। हम कोई गैर आईनी बात नहीं करना चाह रहे। हम अगर सिंध की बात करना चाह रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम पंजाब के खिलाफ हैं, इसका ये मकसद नहीं है कि हम बलूचिस्तान के खिलाफ हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम पश्तूनों के खिलाफ हैं। बड़ा आप हमें बताइए, खुशहाल खान खट्टक और गुल नसीब में कौन सा इख्तिलाफ, भिटाई और बुल्ले शाह में कौन सा इख्तिलाफ, कौन सा इख्तिलाफ? मुझे ये बताइए, जो आदमी कोयटा में रेहड़ी पे किशमिश और बेचता है और अखरोट बेचता है, उसका कराची में जो गोलगप्पा बेचने वाले रेहड़ी वाले आदमी से क्या इख्तिलाफ? जब से पाकिस्तान बना है आपने अपने आकाओं की तरह, ब्रिटिश की तरह आपने हमें डिवाइड किया। सिंध के अंदर दहकान और पंजाब के दहकान में क्या इख्तिलाफ है? इंटेलेक्चुअल्स, ऑनेस्ट लोगों के बीच में क्या इख्तिलाफात? ये इख्तिलाफात पैदा करने वाले वो मुट्ठी भर जनरल है जिन्होंने इस मुल्क में कभी भी प्रोटेक्शन नहीं की और मुहाफिज नहीं रहे। वो मुट्ठी भर जनरल ताजर बन गए हैं, उनको यूनिफॉर्म पहनने का हक नहीं, यूनिफॉर्म प्रिविलेज है, राइट नहीं है। और आपको ये अर्न करना होता है, एक एक लम्हा जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं आपको जस्टिस होना पड़ता है, आपको इंसाफ की साइड लेना पड़ती है। साजिशें करेंगे, आप अपने दुश्मनों के साथ बात करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रस्ट को कायम करने के लिए आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इक़दाम लेते हैं कि एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट पैदा हो। आपने तो जब से पाकिस्तान बना है आपने CDB आपने इस्तेमाल किए हैं, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉइंग मेजर्स आपने इस्तेमाल किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं किए। मरसू धरती खातिर जेड़ोआ, धरती खातिर, बेटन खातिर। और मैं इमरान को ये बात याद दिलाना चाह रहा हूं कि you rise by dharna and you fall by dharna. You rise by dharna, you fall by dharna. तुमसे पहले कई लोगों ने कहा था कि ये कुर्सी मजबूत है, तुम्हें ये पता नहीं कि इस कुर्सी के जड़ें जमीन में नहीं होती, इस कुर्सी की जड़ें GHQ में है। 2 दिन के तो मेहमान हो सकते हो। अगर तुमने वादा किया हम नया पाकिस्तान बनाते हैं, ये नया पाकिस्तान है। तुमने बोला हमने तो सोचा था, तुमसे पहले किसी और ने भी नया पाकिस्तान का जिक्र किया था, और जब उसने नया पाकिस्तान का जिक्र किया तो हमने आधा मुल्क हमारा चला गया। जब मैंने तुमको सुना था नया पाकिस्तान बात करने की, मैं इधर उधर देख रहा था कि अब कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा है मुझे जानने वाला। और अपनी तरफ से तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। हम नहीं कोशिश करते, हमने तो पाकिस्तान बनाया, सिंध ने तो पाकिस्तान बनाया, सिंध पाकिस्तान की मां है। हमने एक चीज बताई है जो हमने की हो, एक चीज, आपने एक कारोबार लगा रखा है। कभी आप 1 यूनिट बनाते हैं, कभी आप काराबाग डैम की बात करते हैं, कभी बगलियार डैम की बात करते हैं,
कभी ज़ैद भुट्टो की लाश उठाते हैं, कभी बेनजीर भुट्टो की लाश उठाते हैं, कभी बशीर कुरैशी की लाश उठाते हैं, कभी आप जो है अकबर मुफ्ती की लाश उठाते हैं। आपने ये कोई तरीका है यूनिटी पैदा करने का? हम कैसे, आप एक चीज बताइए जो आपने की हो जिसमें आपने सिंध और बलोचिस्तान के लोगों को ओनरशिप की फीलिंग दी हो कि हम पाकिस्तान को ओन करते हैं। एक चीज बताइए। जब हम अखबार में पढ़ते हैं आप कोई आप ऐसा अमल करते हैं जिससे आप सिंध के लोगों को लूज करते हैं, बलोचिस्तान के लोगों को लूज करते हैं, गरीबों को चाहे कौन से भी सूबे में रहते हो उनको लूज करते हैं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर गरीबों और अमीरों के बीच में जो फर्क है वो आपके लिए न्यूक्लियर बम है। इससे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को नहीं हो सकता। और आपने सूबों के बीच में जो तकरार पैदा किया है, आप जाइए सिंध के अंदर, आप बलूचिस्तान के अंदर जाइए, आप पख्तूनख्वा में जाइए, आप बात कीजिए आर्डनरी लोगों के साथ, आप ईमानदारी से सुनिए उनको। अगर कल खुदा न खास्ता कोई जंग होती है, अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होती है, मैं आपसे पूछता हूं, अपने ज़मीर को सुनिए, कितने लोग हैं सिंध के और बलूचिस्तान के जो अपनी जान देंगे? Not many. And is this your accomplishment? Is this what you call a strengthening of Shame! Shame! आपको तो आगे आकर सबको गले से लगाना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान का कोई थोड़ा भी एहसास है, आप पाकिस्तान के थोड़ा भी वफादार है, तो आपके अमल से थोड़े नजर नहीं आ रहा। हमारा अमल हमेशा इंसान दोस्त रहा है। इसलिए ये ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ मॉरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि आप इस ऑर्डिनेंस को मैंने जैसे कहा आप पकौड़े वाले कागज की तरह इस्तेमाल कीजिए। ये किसी काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको सिंध को अपने साथ रखना है और धक्के नहीं देना है, सिंध बलूचिस्तान को धक्के नहीं देना है, तो get your act together. Get your act together. And Imran, I'm telling you, get your act together. Don't do these conspiracies. Don't do these conspiracies. Don't be part of these conspiracies. If you want to create your name in history, behave. Start behaving. Be people's friendly. Thank you. नामंजूर 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 नामंजूर